Good morning, students. I am Dr. Shweta Rana, HOD Department of Zoology, Thakur Post Graduation College, Dhaliara, District Kangra, Himachal Pradesh, India. Today we will ponder upon pisciculture. So let's understand the basic concept of pisciculture. The fish industry in India holds a significant position in global fisheries sector. India is the third largest fish production country, contributing 8% to the global fish production and ranked second in the aquaculture production. इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन कंट्री है. इंडिया इज अमंग द टॉप 5 fish exporting countries in the world. India also has a significant reliance on its inland fisheries. India achieved a record of fish production of 175.45 lakh tons in the financial year 2022 and 2023, which is 8% of the global production. Pisciculture. The first known use of pisciculture was in 1807. Pisciculture is also known as fish farming. Pisciculture is the breeding, rearing, harvesting of fishes in controlled environments such as ponds, tanks, and reservoirs. So, pisciculture is a branch of aquaculture focused on increasing fish production for food, commercial trade, and conservation purposes. History of pisciculture. So, pisciculture has a strong history that dates back thousands of years. Some of earliest record examples of fish farming include ancient China. Fish farming was practiced in ancient China as early as 2000 BC. Second, ancient Egypt. Then, fish farming was practiced in ancient Egypt around 1500 BC. Ancient Rome. Fish farming was practiced in ancient Rome around 100 BC. And now question arises, what are the aims and objectives of pisciculture? So aims, increase fish production, economic growth, and food security. For these main purposes, pisciculture is very important. Then biodiversity conservation. Next one है objectives of the fish culture. Selection of suitable fish species, scientific breeding practices, water quality management, efficient feed utilization, and then integration with the aquaculture. So question arises, what is the importance of pisciculture? So provides a sustainable source of protein-rich food, enhances income and employment opportunities, especially in the rural areas. Then next point, helps in conserving wild fish populations by reducing, contributes to economic growth through commercial fish production, scientific research and development. Types of, now the main question arises, what are the basic aspects of pisciculture and how we can culture fishes? So we classify on the basis of culture, pisciculture, monoculture and polyculture. Polyculture also known as fish farm or composite fish culture या composite fish farming. Now the main question arises, what is difference between monoculture and polyculture? So if we're talking about monoculture, so definition, first of all, monoculture means कल्टिवेशन ऑफ ए सिंगल फिश स्पीशीज, जिसमें हम क्या करते हैं, फिश पॉन्ड में या फिश टैंक्स में या फिश रेजर्वायर्स में हम क्या करते हैं, सिंगल स्पीशीज को क्या करते हैं, रियर करते हैं. ऑन द अदर हैंड पॉलीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ मल्टीपल फिश स्पीशीज. सेकंड वन बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी मोनोकल्चर में ऑटोमेटिकली कैसी होगी, लो होगी. ऑन द अदर हैंड देयर वाज बायोडाइवर्सिटी इज हाई इन द केस ऑफ पॉलीकल्चर. सो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, easier to manage and monitor. मोनोकल्चर में हम फिशेस को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और मॉनिटर जो है वो कर सकते हैं. मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीपल स्पीशीज. इन द केस ऑफ पॉलीकल्चर वी कैन it is not easily managed for fisherman. Disease risk. Disease risk is high in the case of monoculture and disease
रिस्क जो है लोअर है किसके केस में, पॉलीकल्चर के केस में. प्रोडक्टिविटी कैन बी हाई, as on the other hand higher as different species occupy different niche. Examples, main examples of monoculture rohu and tilapia. On the other hand examples for polyculture carp, जिसमें हमारा रोहू, कैटला, मृगल या तीनों स्पीशीज को हम जोनेशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, रियर कर सकते हैं. हमारी जोनेशन कौन सी है, लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन एंड प्रोफेंडल जोन. कंपोजिट फिश कल्चर. नाउ अब हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कंपोजिट फिश कल्चर इज ए टेक्निक ऑफ रेजिंग मल्टीपल फिश स्पीशीज इन अ सिंगल पॉन्ड, यानी कि हम एक सिंगल पॉन्ड में मल्टीपल फिश स्पीशीज को क्या करेंगे, रियर करेंगे. इट इज ए पॉपुलर एंड एडवांस मेथड ऑफ फिश फार्मिंग दैट यूजेस द पॉन्ड रिसोर्सेज efficiently. Now the second question arises how it works, यानी कि जो कैसे वर्क करेगी ये. Fishes with different feeding habitats are selected so do not compete for others. Composite या fish culture या composite fish farming में हम क्या करते हैं, different fish species को क्या करते हैं, rear करते हैं. और ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि different fishes की according to zonation क्या होती है, different feeding habitat होते हैं. The fish are raised in different ecological niches in the pond. The fish are fast growing and compatible. और इसके लिए हम कौन कौन सी फिशेस यूज करते हैं, कैटला, सिल्वर कार्प एंड अदर सरफेस फीडर, रोहू एंड अदर कॉलम फीडर्स, मृगल एंड कॉमन कार्प एंड अदर बॉटम फीडर. बेनिफिट क्या है कंपोजिट फिश कल्चर के या कंपोजिट फिश फार्मिंग के या पॉली कल्चर फिश फार्मिंग के? इट मैक्सिमाइज फिश प्रोडक्शन फ्रॉम ए पाउंड. It uses all the available fish pond organism in the pond. It is economical because carp feed on the lower links in the food chain and accept low cost feed. Steps इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, select the site on the basis of ecological, biological and economical factors. यानी कि हम सबसे पहले पॉलीकल्चर के लिए साइट की सिलेक्शन करते हैं on the basis of ecological, economical and biological factors. Manage the pond including removing weeds and unwanted fish. फिश पॉन्ड को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पॉन्ड में जो अनवांटेड वीड होते हैं उनको रिमूव करते हैं. लाइम द पॉन्ड टू ब्रिंग द पीएच टू द डिजायर लेवल. पॉन्ड को हम क्या करते हैं, लाइम का यूज करते हैं जिससे पॉन्ड का जो पीएच लेवल है वो मेंटेन रहे. मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द फिश. फिशेस की हेल्थ को भी मॉनिटर किया जाता है. ट्रीट फिशेस एज सून दे आर डिफेक्टिव. अगर हम फिशेस को मॉनिटर करने के दौरान कोई फिश हमें ऐसा लगता है कि वो बीमार है या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसका एज सून एज उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाता है. उसको हेल्दी फिशेस से किया जाता है, अलग किया जाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटेंसिव पॉलीकल्चर इज ए वेरी एक्सपेंसिव. यानी कि जिसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो हमारा पॉलीकल्चर है, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और रिस्की भी है. इन दिस सिस्टम द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज इज मोर. इस सिस्टम में क्या है, जो डिजीज बीमारी फैलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द फिश साइज इन द सिस्टम. इंटेंसिव पॉलीकल्चर नीड्स हाईली एक्सपीरियंस एम्प्लॉय. दूसरा क्या है, पॉलीकल्चर में हमें वेल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय की जरूरत होती है जिसको सारा नॉलेज हो फिशेस का, कि फिश कौन सी फिश किस जोन की है, कौन सी फिशेस हर्बीवोर है, कौन सी फिशेस जो है वो कार्निवोर है. डिफिकल्ट टू मेंटेन द फूड फॉर ऑल फिशेस. और पॉलीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा टफ होता है कि सारी जोनेशन वाइज फिशेस को क्या है, फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाए. अब हम एग्जाम्पल्स इन द इंडियन पॉलीकल्चर. तो सबसे पहले हम फिश स्पीशीज की बात करेंगे, कॉमन कार्प्स. फीडिंग हैबिटेट ऑमनिवोरस. और जैसे कि हमने बोला कि फिशेस में क्या है, जोनेशन वाइज होती है, कौन कौन सी जोन, लिटोरल जोन, लिम्नाटिक जोन एंड प्रोफेंडल जोन. सो फीडिंग निश कैसा है, निश मतलब हैबिटेट कैसा है, बॉटम फीडर है. और इनका मेजर फूड क्या है, कॉमन कार्प्स का, इंसेक्ट लार्वा, डेट्राइटस एंड वेजिटेशन. देन सेकंड स्पीशीज सिल्वर कार्प. फीडिंग हैबिटेट कैसा है, प्लैंक्टिवोरस. फीडिंग निश कैसा है, सरफेस फीडर. मेजर फूड कैसा है, फाइटोप्लैंक्टन. अब बिग हेड कार्प. ये जितनी भी आप फिश स्पीशीज देख रहे हो ये फिशेस की ही टाइप हैं जो कि हम कल्चर में, पॉलीकल्चर में फिशेस को कल्चर करते हैं. ये उनके बेस्ट एग्जांपल्स हैं. देन बिग हेड कार्प, ये भी प्लैंक्टिवोरस है, यानी कि ये फिशेस किस पे सर्वाइव करती हैं, ये प्लैंक्टन्स को फीड करती हैं, यानी कि इनको जिंदा रहने के लिए प्लैंक्टन्स की जरूरत होती है. और प्लैंक्टन आप ऑलरेडी, प्लैंक्टन क्या है, माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है जो वाटर बॉडी में ड्रिफ्ट करते रहते हैं और ये नेचुरल फूड है फिशेस का. ये प्लैंक्टिवोरस है और ये सरफेस फीडर है और इसका मेजर फूड है जूप्लैंक्टन. ग्रास कार्प, ये हर्बीवोर है और ये कैसी है, मार्जिनल फीडर. देन इसका मेजर फूड है वेजिटेशन. रोहू, हर्बीवोर्स. फीडिंग निश, बॉटम एंड मार्जिनल.
Major food, large phytoplankton. Fish species Catla. Feeding habit, planktivorous. Feeding niche इसका surface feeder. Major food, zooplankton. Next fish species is mrigal. Then its feeding habitat is omnivorous. Feeding niche, bottom feeder. Major food, insect larvae, worms and vegetation. Next fish species tilapia. Feeding habitat, omnivorous. Feeding niche, marginal feed. And major food is plankton, insects. अब हम नेक्स्ट मोनोकल्चर की बात करेंगे. तो मोनोकल्चर कैसी है, इसमें हम क्या ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि पॉलीकल्चर में हम दो से ज्यादा स्पीशीज को रियर करते हैं, पर मोनोकल्चर में हम क्या करते हैं, सिंगल स्पीशीज को क्या करते हैं, रियर करते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या है, स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट है, हाई यील्ड है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट है, सुटेबल फॉर इंटेंसिव सिस्टम और easy to feed fishes, easy to monitor. Selective harvest of marketable fish can be employed, suitable for farmers, fish limited land resources. And what are the disadvantages? Reduced biodiversity, increased vulnerability to disease, natural productivity not fully utilized, and competition for feed and space among species is avoided. So let's conclude. क्या हमने conclude किया? पॉलीकल्चर, अभी तक हमने क्या देखा पढ़ा कि पिस्कीकल्चर है क्या, हमने उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इंडिया की पोजीशन क्या है, फिश इंडस्ट्री जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया के कितनी इकोनॉमी से बढ़ती है, कौन सी पोजीशन पे इंडिया आ रहा है एक्सपोर्ट करने में, और पॉलीकल्चर के बारे में पढ़ा. बेसिकली जब हम पिस्कीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें हम फिशेस को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं. ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली हम फिशेस के सीड को क्या कर सकते हैं, कल्चर करते हैं. अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो बेस्ट अप्रोच डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग द स्पीशीज बीइंग कल्चर्ड, द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द गोल ऑफ फिश फार्मर. Polyculture can be valuable option for increasing efficiency and sustainability in aquaculture, but it requires careful planning and management. Monoculture may be more suitable for certain species and production goals, but it carries a higher risk of environment and economical problem. In short, अगर हम फिर से दोबारा अगर पिस्कीकल्चर ग्लांस करें तो पिस्कीकल्चर में हम क्या करते हैं, फिशेस को आर्टिफिशियल तरीके से रियर करते हैं. दो तरीके से कल्चर के बिहाफ पे हम पिस्कीकल्चर को दो मेन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं या करते हैं, पॉलीकल्चर एंड मोनोकल्चर. पॉलीकल्चर को हम कंपोजिट फिश फार्मिंग और मोनोकल्चर को हम मोनोकल्चर फिश फार्मिंग भी बोलते हैं. पॉलीकल्चर में हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा फिश स्पीसीज को रियर करते हैं. मोनोकल्चर में हम सिंगल स्पीशीज को क्या करते हैं, रियर करते हैं. और पॉलीकल्चर में जब हम फिशेस को रियर करते हैं तो हम फिशेस को उनकी जोनेशन के हिसाब से क्या करते हैं, उनको रियर करते हैं. तो हमें ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सी जोन होती है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन और प्रोफेंडल जोन. पॉलीकल्चर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. मोनोकल्चर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. बट ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में फिश इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा एक रोल है. थैंक यू.